So students, today we are going to discuss about total revenue, average revenue and marginal revenue under perfect and imperfect competition. Before moving further, we must understand and revise ourselves with what is an perfect competition. What is an perfect competition? So as you all have studied in your second year junior college, as you all have studied in your second year junior college, there are certain features that perfect competition has. These features are that there are large numbers of buyers and sellers. Large numbers of buyers are they are so large as a single buyer or a single seller are just a tiny, like we can reflect it as a tiny drop in an ocean. इतने large numbers of buyers and sellers है. Sir, other thing is that the sellers are homogeneous, एक ही तरह के हैं, and there is free entry and exit for anyone to come into the market. There is factors are mobility and there are perfect mobility of factors of productions, and very important point that in a perfect competition the firms are price taker. Firms are price taker. Price are not decided by a perfect competition firm. Perfect competition में जितने firm होते हैं, they don't decide the price. They are the price taker. Price are made by market forces, that is demand and supply. Demand and supply will decide what will be the price, and largely the prices are constant as well. So let us take an example where we have a seller. Can you see the board, students? Okay. So let us take an example that we have a seller, and ये जो seller है ये quantity sell कर रहा है. Unit of, please check your mic, students. ये किस राहिश शेख, please check your mic. राहित, okay. So we have a unit of quantity sold. We have a unit of quantity sold. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit, till 10th unit of quantity sold. तो हमारे पास एक सेलर है, जो कि यूनिट सेल कर रहा है मार्केट में. एक कमोडिटी बेच रहा है, 2 कमोडिटी बेच रहा है, 3 कमोडिटीज बेच रहा है, 4 कमोडिटी बेच रहा है, 5 कमोडिटी बेच रहा है, 6 कमोडिटी बेच रहा है, 7 कमोडिटी बेच रहा है, 8 कमोडिटी बेच रहा है, 9 कमोडिटी बेच रहा है, and 10th unit of quantity sold. So students, and in a perfect competition we know that sir, the prices are constant. For our example, let us take a price to be 10. Let us take a price to be 10. Okay, so he charge for first unit of quantity sold. पेंसिल समझ लेते हैं, ये मार्कर है. एक मार्कर के लिए परफेक्ट कंपटीशन में ही चार्ज ₹10. Okay, so if you buy 2 markers or if you sell 2 markers, again the price will be same, price will not change. So even if you sell 2, 3, 4, 5 marker, the price will remain constant. So we have for the second unit price remains the same, for the third unit price remains the same. If he is selling 4 units of quantity, still he will charge a same price for a single unit. So the price is going to be same for each and every unit. Now let us understand how do we calculate total revenue. Before going to what is, let us know what is total revenue. Revenue, students, revenue and profit are not same.
revenue and profit are not same. When we say that we have earned a profit, हमें प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इफ आई एम सेलिंग समथिंग फॉर 100 रुपीज एंड मैंने बोला कि मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कैन समवन टेल? 100 रुपए का मैंने कमोडिटी बेचा है और मुझे 40 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि मुझे 60 रुपीज का कॉस्ट है एंड 40 रुपीज मेरा प्रॉफिट है. यस और नो? ये मेरा प्रॉफिट है. प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पार्ट एट विच वी सेल. वेरएज रेवेन्यू जब हम बोलते हैं, व्हेन वी से दैट वी आर हैविंग अ रेवेन्यू, व्हेन वी से वी आर हैविंग अ रेवेन्यू, दैट मीन्स इफ यू आर सेलिंग अ क्वांटिटी फॉर 100 रुपीज, revenue is also 100 rupees. So revenue is nothing but net sales or total sales. Revenue हमारा sales है, हमें कितना पैसा मिला. If I am selling this marker for 10 rupees, तो मुझे 10 rupees मिला, so that is my revenue. Profit बाद में निकाला जाएगा, cost cut होके, but revenue is different. So one should never say revenue instead of profit. आपको पता होना चाहिए हमें कब revenue ये word use करना है एंड प्रॉफिट कब यूज करना है. यू विल से प्रॉफिट व्हेन यू हैव रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम इट. यू विल से रेवेन्यू व्हेन यू हैव नॉट रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम इट. ठीक है? रेवेन्यू इज नथिंग बट सेल्स इन द वैल्यू ऑफ सेल्स. अगर मैंने 100 यूनिट पेन के बेचे 10 रुपए के, तो आई एम अर्निंग 1000 रुपीज. ठीक है? आई एम अर्निंग 1000 रुपीज, तो वो मेरा रेवेन्यू है. अगर उसमें से कॉस्ट कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा. Okay sir, so we got what is revenue. Sure. Text message yes if you got what is revenue. Difference between the revenue and profit. Text message yes. I should see the text messages. Okay, very good. Very good. Fine. Shall I explain it once again? Okay, no problem. What is the difference between profit and revenue? Okay. Oh, no problem. What is the difference between profit and revenue? प्रॉफिट हम कब बोलते हैं? जब हम सेल्स में से, समझो कि मैंने 100 रुपीज के सेल्स की है, 100 रुपीज का. ओके, ये हमारा सेल्स है. 100 रुपीज का मैंने सेल्स किया है. ओके, एंड इसमें से मुझे 60 रुपीज कॉस्ट हुआ है. दैट इज माई कॉस्ट, खर्चा. इसमें से 60 रुपीज मुझे कॉस्ट हुआ है. सो हाउ डू आई कैलकुलेट अ प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट 100 माइनस 60, सो सेल्स माइनस द कॉस्ट, विच इज 40. ठीक है? प्रॉफिट समझा आपको? उसमें से हम जितना हमें सेल्स मिला है, वी आर गोइंग टू रिड्यूस आवर कॉस्ट, वी आर गेटिंग द प्रॉफिट. Whereas when we talk about revenue, revenue means nothing but sales that you made. इसी को revenue बोलते हैं. ओके, 100 रुपीज, इसमें से कॉस्ट माइनस नहीं हुआ. गॉट इट? द पर्सन हु आस्क्ड टू एक्सप्लेन अगेन, समझा उसको? ओके ओके. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. हमें कभी भी प्रॉफिट के जगह पे रेवेन्यू ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. अभी आपको समझ में आ चुका रहेगा, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट. रेवेन्यू में से कॉस्ट कम नहीं करते हम लोग. ओके सर, हाउ डू वी कैलकुलेट अ रेवेन्यू? सो टू कैलकुलेट अ टोटल रेवेन्यू, टोटल, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला. टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, सर मैंने एक यूनिट बेचा है 10 रुपीज में, टोटल सेल्स कितना हुआ? 10 रुपीज. अगेन कैसे मिला ये? सर प्राइस टाइम्स क्वांटिटी. प्राइस टाइम्स क्वांटिटी इज योर टोटल रेवेन्यू. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू? कैन यू सी द बोर्ड? हैंड राइटिंग दिख रही है ना आपको? ओके. सो टोटल रेवेन्यू इज price time quantity. Okay, so shall we solve? Total revenue equals to P into Q. Please write down this formula.
Now we'll solve this table for total revenue. You don't require a calculator. ये देखो, ये हमारा प्राइस है P, ये हमारा क्वांटिटी Q है, प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 1, 10 into 1 is 10, total revenue is our 10, 10 into 1 10. Again second, if you are selling two quantities, price times quantity 10 into 2. कोई माइक ऑन करके बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैट में मैसेज कर दो, सो आई नो दैट यू आर फॉलोइंग. हाँ, 10 into 2 20. For 3 units total revenue is 30. For 4th unit total revenue is 40. 5th unit 50. 6th unit 60. 7th unit 70. 8th unit 80. 9th unit 90. And 10th unit 100. Okay. Okay, students. So now we can calculate average revenue as well. सर ने नंबर इजी दिए है तो इजीली कैलकुलेट हो रहा है. Now what is an average revenue? एवरेज कोई बता सकता है सर, व्हाट इज एन एवरेज? एवरेज कब हम निकालते हैं? स्टैटिस्टिक्स में करते थे हम लोग. यस, एवरेज मतलब क्या होता है? यस, इफ रोहित शर्मा स्कोर्स पहले इनिंग में 100 रन्स, सेकेंड इनिंग में 50 रन्स और तीसरे इनिंग में अगेन ही स्कोर्स 50 रन्स, how do we calculate an average? How do we calculate an average? एवरेज बोलते हैं ना, एवरेज स्कोर आता है ना उसका, कैसे रहता है? इफ ही स्कोर्स 100 रन्स इन फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग में 50 रन स्कोर करता है, थर्ड यूनिट में रोहित शर्मा स्कोर 50 रन्स अगेन, हाउ डू वी कैलकुलेट एन एवरेज? टोटल नंबर ऑफ रन्स which is 200 upon number of innings 3. You will get some number 75 और 77 के आसपास आपको कुछ नंबर आएगा, कैलकुलेट करोगे तो. यू कैन टेल मी इफ यू वांट. 200 अपॉन 3 क्या आ रहा है? यस स्टूडेंट्स, 200 अपॉन 3 क्या आ रहा है आंसर? 66.67. डू द मैथ्स, कैलकुलेटर लेके बैठो. यस, सो इट्स 66.67. सो इससे क्या मिलता है हमें? इससे क्या मालूम पड़ता है कि सर इफ रोहित शर्मा बैट्स ऑन एन एवरेज ही स्कोर 66.67 रन्स. someday he will score less runs, someday he will score higher run, but on an average he scores 66.67 runs. Same way we have to calculate the average revenue. Same way we have to calculate the average revenue. Average revenue यानी क्या होगा यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी अब तक कितना पैसा आया. टू कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू प्लीज राइट द फॉर्मूला एज वेल. अब तक कितना पैसा हमारे पास आया है, टोटल रेवेन्यू, अपॉन हाउ मच द क्वांटिटी वी हैव sold. How much the quantity we have sold. So this is where we are going to get average revenue. Again, because the prices are same, this will again become easier to calculate. Total revenue is 10. 10 upon 1 is, students, average revenue is equal to total revenue upon Q. 10 upon 1 is 10 divided by 1. What do we get? 10 again. Yes, 10 divided by 1 is 10. 20 divided by 2 is 20 divided by 2 dear.
10, 20 divided by 2 is 10, 30 divided by 3 is 10 again, 40 divided by 4 is 10. So we are getting 10 for each and every value. Okay, so next we can calculate is marginal revenue. Next we can calculate in marginal revenue. Marginal revenue is change in total revenue. That is, अगर हमने इसको ऐसे वैल्यू दिया TR1, पेंसिल से लिखना आप लोग इधर, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9 and TR10. राइट डाउन बाय पेन, ये पेंसिल से लिखना साइड में आपको, इसे एग्जाम में भी आप ऐसे करोगे. So in a marginal revenue we are calculating the change in total revenue. We are calculating the change in total revenue, कि किस तरह से टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या है, इनिशियल टोटल रेवेन्यू वाज 10, यानी क्या है, TR1 10 था एंड TR2 व्हेन वी सेल 2 क्वांटिटीज तब टोटल रेवेन्यू है हमारा 20. प्लीज पे अटेंशन केयरफुली. व्हेन वी सेल 2 क्वांटिटीज our total revenue is 20. When we are selling one quantity, single commodity, our total revenue is 10 itself. So to calculate the change in total revenue, we are going to minus TR1 from TR2. That is, change in total revenue is equal to TR2 minus TR1. Have you followed this formula? आंसर कैसे आएगा? TR2 है 20 minus 10, आंसर आएगा 10. So this is nothing but marginal revenue. Marginal revenue equal to TRN minus TRN minus 1. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. TRN minus N minus 1. जैसे कि इफ यार फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज इसके पहले कोई भी टोटल रेवेन्यू हमें नहीं पता, वेदर इट इज 0 और नॉट, वी डोंट नो. सो द इनिशियल मार्जिनल रेवेन्यू विल नॉट कैलकुलेट, एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्मूला विल बी TRN माइनस TRN माइनस 1. कैसे करना अभी दिखाता हूं. सो वी आर कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू फॉर सेकेंड यूनिट नाउ. So we'll name here as TR2. सेकेंड यूनिट के लिए कैलकुलेट करें ना, तो N will become 2. Marginal revenue for second unit MR2 equals to TR2 minus TR. N की वैल्यू है हमारे पास 2 minus 1, which is again equals to TR2 minus TR2 minus 1 is 1. सेम वही फॉर्मूला बना है. Did you follow? Do anyone have a doubt कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालना है? फॉर्मूला समझा? Okay. Look here carefully. Marginal revenue is change in total revenue. Marginal revenue is change in total revenue. चेंज इन टोटल रेवेन्यू मतलब क्या है कि अभी का टोटल रेवेन्यू माइनस प्रीवियस टोटल रेवेन्यू क्या था. सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू एट n टाइम्स पीरियड, मतलब जो भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें उधर n लिखेंगे हम लोग. MRN इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू n माइनस TRN माइनस 1. समझो हम लोग सेकेंड यूनिट निकाल रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग. क्वांटिटी
क्वांटिटी 2 निकाल रहे हैं ना हम लोग. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n एस 2. n की जगह पे क्या लिखेंगे 2, tr2 माइनस tr2 माइनस 1. यहां तक समझा? हेलो, द पर्सन हु आस्क्स मी, समझा क्या? हाँ. सो tr2 माइनस 1 इज tr1. अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. mr2 इक्वल्स टू tr2 की वैल्यू क्या है 20, tr1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, एंड देन द आंसर इज 10. 10 इज द आंसर. ठीक है. नाउ इफ यू आर कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू एट थर्ड यूनिट, तीसरे यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे mr3. टोटल रेवेन्यू क्या लिखेंगे tr3. टोटल रेवेन्यू एट थर्ड यूनिट, n की वैल्यू हो जाएगी 3. सो mr3 इक्वल्स टू tr3 माइनस tr2. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला समझ गए ना आप, तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. सो आंसर विल अगेन बिकम 10. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज 30 माइनस 20, 20 माइनस 10, ऐसे करें हम लोग. सो ये नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना है 40 माइनस 30 विच इज अगेन 10. स्टूडेंट्स हैव यू फॉलोड? ओके, काफी इजी है. जस्ट फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया एंड देन वी जस्ट हैव फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं बाद में, आपको इधर से ही करना है सीधा. 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10. सो सभी वैल्यू हम लोग को 10 ही मिलने वाली है. इनिशियल स्टेज वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला बस. हाँ, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का डिफरेंस समझ में आना चाहिए. मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, इनिशियल टोटल रेवेन्यू माइनस प्रीवियस टोटल रेवेन्यू. तो आपको फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट रिड्यूस इट. ये वैल्यू में से ये माइनस करो, ये वैल्यू में से ये माइनस करो, तो आपको वैल्यू मिलने वाली है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द टेबल. सर क्या मालूम पड़ा है हमें? इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वी आर डूइंग दिस फॉर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हाँ, ये मैंने वैल्यू डालने बोला आपको बस. ये tr1, tr2, tr3, tr4, ताकि आप उधर सॉल्व कर सके अच्छे से. पेंसिल से साइड में लिखने के लिए यहाँ पे आप 1 2 3 पे भी लिख सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े आप कौन सी वैल्यू कर रहे हैं. ठीक है. इवन इफ यू डोंट राइट इट, इट्स ओके. अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो फाइन. हाँ, सो वी आर डूइंग इट फॉर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. We are doing it for a perfect competition. So in a perfect competition, मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन. यू कैन राइट इन योर बुक एज वेल. प्राइस कांस्टेंट है. ये टेबल से हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? सर प्राइसेस आर कांस्टेंट, प्राइसेस आर नॉट चेंजिंग. सेकंड थिंग हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि दैट सर टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. बट ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है, देखो आप हमेशा 10 की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 में इंक्रीज हो रहा है, 10, 20, 30, 40. सो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि सर टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट. रेट चेंज नहीं हो रहा है, द रेट इज सेम, कांस्टेंट रेट. So the second point that we observe in a perfect competition, that prices are constant, total revenue increases at constant rate. Fine, total revenue increases at constant rate. Third चीज हम observe क्या कर रहे हैं? That you can easily observe price and average revenue are equal. We'll observe that the prices and average revenue are equal. Yes or no, student? Text message yes if you are following. Yes, okay, fine. So the third point that we are observing,
that sir price and average revenue are equal. Also marginal revenue after first unit is equal to price and average revenue as well. 10 10 10. So we have observed that sir in a perfect competition prices are constant, total revenue increases at a constant rate, whereas prices are equals to average revenue and they are also equals to marginal revenue. Price P is equal to AR is equal to MR. P equals to AR is equal to MR. Prices are equals to average revenue and they are equals to marginal revenue as well in a perfect competition. So students, these are the conclusion point for total revenue, marginal revenue and average revenue under perfect competition. Have you followed this? Okay. Okay, so we'll do the same thing with the diagrammatical presentation now. ठीक है, हम लोग सेम थिंग करेंगे अभी डायग्राम बना के एक अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, यही टेबल का यूज करेंगे टू ड्रॉ द डायग्राम. Can you see this section of board? Can you see this section of board? Okay. Okay. So we have an y-axis, we have x-axis, and O as an origin. Please draw the diagram using the pencil and carefully note what are the things that we are pointing out. ठीक है? Sorry. So X, we are going to measure units sold. Units sold x-axis पे measure करेंगे. Whereas on y-axis we are going to note down prices, average revenue, prices, total revenue, average revenue and marginal revenue हम y-axis पे note करेंगे. ठीक है? So we as हम लोग 5 यूनिट तक ही डायग्राम बनाते हैं, आगे का बनाने की जरूरत है because the values are same again. So units sold are 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट. 5 यूनिट तक डायग्राम देखते हैं. If you are selling 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit, 7 unit, 5 unit. We are doing it till 5 unit. Sorry. Whereas price on y-axis 10, 20, 30, 40, 50. Can you see the numbers? Okay. So let us calculate the price first. Sir, at first unit price is 10, तो मैंने यहाँ पे circle कर दिया. At first unit the price is 10. Can you see the circle as well, right? मैंने point कर दिया वहाँ पे. Okay. At second unit, sir again the prices are 10. Third unit price same है. Fourth unit के लिए भी price same है. Fifth unit के लिए भी price same है. So we are having a straight, we are having a perpendicular line, sorry a parallel line to the x-axis. यही हमारा price है. Any doubt? Price समझा आपको? At each and every interval of time price हमारा 10 है, तो ये सीधा लाइन बनेगा ऐसे. सेम एवरेज रेवेन्यू भी हर एक वैल्यू के लिए 10 है. सो दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू.
अगेन द सेम वे दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एज वेल. यही लाइन प्राइस भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है, मार्जिनल रेवेन्यू है. द रीजन इज एट ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, each and every interval of time, prices are 10, whereas average revenue is 10 and as well as marginal revenue is 10 for each and every unit of output sold. Let us go for total revenue. If you are selling 1 unit, total revenue is 10. If you are selling 2 units, total revenue is 20. 2 unit 20, ऊपर बनेगा थोड़ा. If you are selling 3 units, total revenue is 30. If you are selling 4 units, total revenue is 40. थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, but you can just ignore. So I don't have a scale to measure. 30 for 3 units, 40 for 4 units, and 50 for 5 units. So we are again going to have a straight line, total revenue, which increases at an increasing rate. डायग्राम से एक्सप्लेन किया है. सेम थिंग, सब प्राइस कांस्टेंट है और प्राइजेस आर इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. प्राइस आर इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. रेट ऑफ फ्लक्चुएट नीचे नहीं आ रहा है, ना ऐसे ऊपर एकदम से इंक्रीजिंग रेट में नहीं जा रहा है, कांस्टेंट रेट में है. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट. डायग्राम नॉट क्लियर, यू आर नॉट एबल टू सी द डायग्राम, और आपको डायग्राम नहीं समझा. पूजा, यू आर नॉट एबल टू सी द डायग्राम. ऑफ कोर्स ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑन करके आप रोटेट करके देखो, पूरा दिखेगा आपको.